ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಲಂಚ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ರಹಿತ ಪಾರದರ್ಶಕ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಯಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿದಾಯತುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೋಕ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಲೋಕ್ ದ್ವಿವೇದಿ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯೀದ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮಹಿಳಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಲಿಕಾ ಅನೀಸ್ ಫಾತಿಮಾ, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನದೀಮುಲ್ಲಾ ಹುಸೈನಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುಹುಲ್ಲಾ ಹುಸೈನಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಿತೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಹಮದುದ್ದೀನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿದಾಯತುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ತೆಲಂಗಾಣ ನಿರ್ಮಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಏರಿಯಾ ಆಫೀಸರ್ ಶೇಖತ್ ಸಾಹಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಭಾಷಣಕಾರರು ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸಯೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಅಸ್ಸಾಂ, ದೆಹಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಮಾಜವನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯುವಕರು ಈ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜಮೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನವಿದಿತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ರಫೀಕ್ ಪಾಷಾ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಷಾ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜಮೀಲ್ ಪಾಷಾ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೋಲಾರ, ಸಾದಾತುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೈಯದ್ ಮುದ್ದಸರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫೀಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಹಿದ್ ಏರಿಯಾ ಆಫೀಸರ್, ಜ್ಯೋತಿ ಏರಿಯಾ ಆಫೀಸರ್, ಶಂಶೇರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫೀಸರ್, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬೇಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಫೀಸರ್, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಏರಿಯಾ ಆಫೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಅನ್ಸಾರ್ ಸಾಗರ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. एक्चुअली लिखना चाहिए। यस सर, आप लोग तो अच्छे इसी में बैठे हैं, हम लोग अच्छा मुका बैठे हैं। मैं तो सही लेते सही साहब ने बोला, मैं बचपन से सही में देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। हम तो रोड पे सोए हैं रैली में, खाना नहीं था हमें। सही साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरा रैली में खाना होने के बाद अगर कुछ बचता था तो सही साहब खाते थे, ये तो खाते भी नहीं थे। ऐसे लोग हैं, उनकी दुआ है, उनकी आशीर्वाद है, तभी कमेटी आगे बढ़ रही है। बहुत सारी कमेटी हमने देखा है कि वो आई बंद भी होकर चली गई, लेकिन हमारी कमेटी ऐसी है कि 28 साल से काम करी है और आगे करते रहेगी। बस आपका दुआ और आशीर्वाद चाहिए, यही है। और ये मीटिंग में करना चाह रहा हूँ कि मेरी पिछले 28 साल से मैं कमेटी में काम कर रहा हूँ और डिफरेंट टाइप के करप्शन और क्राइम देखने को। और सबसे सिंपल करप्शन क्राइम क्या है, किसी ऑफिसर को पैसे दिए अपना काम कराए, पुलिस वाला कुछ भी रुकाया, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, पैसे दिए काम करा दिए, नल का आपका काम नहीं हो रहा, पैसे दिए काम करा दिए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, पैसे दिए काम करा दिए, हर जगह आप करप्शन। इसके अलावा भी दूसरे बहुत टाइप के करप्शन हैं जो लोग सीधा नहीं लेते, घुमा के फिरा के लेते, काइंड्स में लेते, प्रॉपर्टी की शक्ल में लेते, बहुत सारे टाइप के करप्शन करें। मगर इस बार मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, हंसी भी आई, गुस्सा भी आया कि हमारा देश जो है ना कहाँ पे पहुँच गया कि अब जो करप्शन क्राइम हो रहा उसके असरात इतने खतरनाक होते जा रहे कि आने वाले दिनों में हमारे देश का बेड़ा गर्क हो जाए। पिछले बार हमारे पास म्यूनसिपल इलेक्शन हुआ था, भैंसा के सराउंडिंग जो तालुके हैं वहाँ पर जो है भोकर है, धर्माबाद है, महाराष्ट्र बॉर्डर है तो 3 जगह पे उसकी जो मटका चलाने वाले लोग हैं वो लोग चेयरमैन बने और वो लोग चेयरमैन बने कैसा, करोड़ों रुपए खर्च करें। ये करोड़ों रुपए जो खर्च किए जहाँ पर काउंसिलरों की खरीदो फरोख्त हुई और वहाँ पर जो है ना सत्ता में बिठा दिया। अब ऐसे लोग क्या डेवलपमेंट का काम करेंगे, क्या जो है ना अवाम का काम, जिनके
बच्चों का भविष्य खराब कर रहे, जिनकी फैमिलियों के जो सा है ना उसको ख़त्म कर दे रहे। आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि लोग आजकल ये सट्टा मटका और ये ऑनलाइन बेटिंग जो हो रही, उसमें लोग लाखों रुपए डाल दे रहे हैं नौजवान लोग। अपने घरों के जेवरात जो है ना मालूम नहीं है, जेवरात ले के बेच के पैसा डाल, डॉक्यूमेंट लाखों रुपए के करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जाके रेंट रख दे के उसके जो है ना पैसा जुए सट्टा मटके में लगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं आने वाले दिनों में एंटी करप्शन के प्लेटफॉर्म से वो सट्टेबाजों के खिलाफ, वो मटका चलाने वालों के खिलाफ, वो बिटकॉइन चलाने वालों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ के काम करूंगा इंशाल्लाह ताला। और सबसे पहले तो मैं हमारे सबसे एंटी करप्शन कमेटी के जो हीरो है नेताजी को मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने 1998 के अंदर गोरखपुर से निकलकर एक आम अवाम के लिए एक गरीबों की आवाज़ बनकर 1998 के अंदर एक एनजीओ का आगाज़ किया। आज 28 इयर्स कंप्लीट होने के बाद जिस तरीके से वो अकेले निकले थे सड़कों पर लोगों की भलाई के लिए, लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए, आम अवाम को आज़ादी दिलाने के लिए, आज 28 सालों के बाद लाख साफ पीपुल हमारे कमेटी के मेंबर बनकर उभर रहे हैं। मुझे एज ए डिप्टी एरिया ऑफिसर नॉर्थ तेलंगाना 2018 में अपॉइंट किया गया था। जिस भरोसे के साथ रविंद्र द्विवेदी जी हमारे नेताजी ने भरोसा जताया, आज हम 8 साल से कंटिन्यू मेरे हीरो, मेरे आइडियल, मेरे सरप्रस्त सईद अहमद एडवोकेट के साथ मैं भैंसा शहर में काम कर रहा हूं। मैं बताता चलूं, सईद अहमद एडवोकेट साहब ने जो काम किए हैं, किस तरीके से काम करना है, एंटी करप्शन किस तरह काम करें, सबसे पहले हमको सिखाए हैं। पहले किसी भी कहाँ पर भी किसी भी दफ्तर के अंदर, किसी भी ऑफिस के अंदर अगर करप्शन हो रहा है तो उसकी बेसिक चीज़ों को पहले हासिल कर लें। उसके बाद उसके ऊपर आरटीआई यानी कि 2005 जो हमारा राइट है उसको एक आरटीआई डाले 10 रुपये लगाकर। उसके बाद उनकी डिटेल को, दी हुई डिटेल को और हमने जो हासिल की डिटेल को दोनों को टैली करे, तब आपको करप्शन उसके अंदर जाहिर हो जाएगी। ये मेरे आइडियल, मेरे हीरो सईद अहमद एडवोकेट साहब ने सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भैंसा शहर के अंदर इतने सारे काम कर रहे हैं। हमारा भैंसा शहर कम्युनल एरिया माना जाता है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा वहाँ पर फीलिंग है। हमेशा एवरी फेस्टिवल के अंदर फसादात, झगड़े होते हैं और लोग गरीब हैं, वहाँ पर दूर दूर से लोग कारोबार करने आते हैं। 12 बजे 12:30 बजे तक बाजार चालू रहता है, लेकिन जब कम्युनल होता है, झगड़े होते हैं, फसाद होता है, एक महीना बाजार बंद होता है। उसके बाद पुलिस अपना डोमिनेट डिसीजन जमाने के लिए 8 बजे 7 बजे दुकानों को बंद कर दे रही, जिससे गरीबों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तब सईद अहमद एडवोकेट साहब ने हमारे रविंद्र नेताजी के साथ मिलकर उनके लेटर के जरिए जो काम किया सेंट्रल लेवल से, अल्हम्दुलिल्लाह 11 बजे दोबारा जो है बाजार खुला गया और वहाँ गरीब लोग आसानी से अपनी ज़रूरत को, अपनी रोटी रोजी कमाने में सहूलत हासिल कर रहे हैं। आज की बात बता रहा हूँ, आलोक जी के 3 days 4 days बिफोर जो है हमारे हेडमास्टर, पीजी हेडमास्टर ने 2 स्कैवेंजर अलॉट किए थे गवर्नमेंट की जानिब से। 6000 पर मंथ उनको सैलरी थी, बट वो एक स्कैवेंजर से काम ले रहा था और एक को खुद अपने जेब में डाल रहा था 6000 रुपीज़। जैसे ही बात इंटीग्रेशन कमेटी नेशनल स्पोक पर्सन सईद अहमद एडवोकेट साहब को मालूम हुई, उन्होंने हमको फील्ड पर भेजा और पूरा डाटा कलेक्ट करने के बाद आरटीआई के जरिए जब भेजे तब दोनों में टैली करे। तो आज इंक्वायरी, आज बेटी हम लोग बेंगलोर के लिए आ रहे थे, एमईओ डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एंड मंडल एजुकेशन ऑफिसर इंक्वायरी के लिए आए, वो रो रहा है। ये ताकत एंटी करप्शन कमेटी की है, आपको पूरी आज़ादी है, शर्त ये है कि काम करने का तरीका हमको मालूम हो, काम किस तरह किया जाए। काम करना सिर्फ चले गए एंटी करप्शन कमेटी के जरिए हम कार्ड लेकर और जाकर जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, नहीं, पहले उनकी डिटेल को हासिल कीजिए, बेसिक इंफॉर्मेशन पूरा डिटेल लगाइए, फिर उसके बाद आरटीआई डाल से उनसे डिटेल को हासिल करने को दोनों को टैली कीजिए, डेफिनेटली आपको उसके अंदर क्राइम करप्शन मिलेगा। हम सोच रहे हैं कि हम आज़ाद हैं,
आज हम पूरे लोग आज़ाद नहीं, 1947 के अंदर जिस तरीके से हमारा मुल्क आज़ाद नहीं था, ब्रिटेन के कब्जे में था, तब भी अमीर लोग, तब भी बड़े बड़े ऑफिसर लोग जो है आज़ादी थे, ब्रिटेन से मिलकर काम करके आज़ाद थे, और अगर कैद खाने में था तो गरीब था। और आज भी 2026 आ गया, आज भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हर गरीब को हर काम करने के लिए करप्शन देना पड़ रहा है। आज गरीब को बेबस पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, अगर अमीर लोग पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनके बच्चे अगर क्राइम करते हैं तो वो कोटे को कंप्लीट करने के लिए गरीब बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को ले जाकर जेलों में डाला जा रहा है। ये भी एंटी करप्शन कमेटी काम कर रही है, हमारे नेताजी ने हमको सिखाया। हम इस स्टेज के जरिए नेताजी को बताना चाहते हैं, जिस तरीके से 1998 के अंदर जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस तड़प के साथ उन्होंने निकले हैं, इंशाअल्लाह हम वादा कर रहे हैं, हम तमाम मेंबर जो लाख साहब मेंबर है, हम बिल्कुल आपके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे और इंशाअल्लाह मुकम्मल कंप्लीटली हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाएंगे। Guest our national working president Rabindranath Ali Alok ji and national spokesman Saeed ji, I welcome and Deepika ji from and Nadeemullah ji and Karthik ji and every of the person who are attended here. Thanks to all to attend and do this. Today I stand before you speak of matter of effects of every citizen, every institute and future of our nation is corruption. Because without corruption, nothing. Not corruption is not only the giving the bribe, only not taking the money by hand. Corruption stands for misuse of the powers also. Corruption comes in destroying democracy and a lot of things like for builders, for business peoples, for to give the poor man standing in the queue for their this one, what is the government certificates, a poor man standing and the students who Warm wishes to everyone. I thank the greatest Karnataka team for inviting us and letting us know so many things about their team, the way they are working, the way they honor the national team, and they are appreciating the work. They are cooperative. I mean, they have too much of cooperation. They are trying to understand each other. They are coming out with different issues and all. Like I would like to thank Saeed ji, Alok ji for guiding us timely. Whatever we do, we contact them, we inform them. If we are not able to contact any particular person, right, either of them we contact and we discuss all the details. If we are not able to discuss personally, vocally, we put on WhatsApp. मेरे को इस अवसर में मौका दिया कि मैं आप सबके सामने ये टॉपिक पे कि हम करप्शन के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं। ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಫೆಲ್ ಇಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗದಿರೋರು ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ವಾಸ್ ನೋ, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ದೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೆ ಬಂತು 3 years ಬ್ಯಾಕ್. ಏನಾಯ್ತಂದರೆ, ನಾನು ಹೊಸದಾಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಸ್ಕೂಲು, ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ.